الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ سنیچر کو ہم نے وضو کے فرائض پر بھی بحث کی تھی. غسل کے فرائض بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کو اچھے سے سیکھ لیا ہوگا اور اسی کے مطابق آپ غسل بھی کر رہے ہوں گے اور وضو بھی کر رہے ہوں گے. اسی کے مطابق کر رہے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہیں. سارے بولیے ایک ساتھ، آواز سب کی منہ سے نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے بچہ؟ تاکہ مجھے یہ لگے کہ آپ لوگ میری باتوں کو پورے شوق سے، طلب سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے بچہ؟ تو پوری توجہ دیجیے گا. اگر کوئی چھوٹا بچہ ڈسٹربنگ کر رہا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دینا، آپ نے میری باتوں کی طرف دھیان دینا ہے. پھر بھی میں ایک کام کر لیتا ہوں، وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض کے تعلق سے اپنے تسکین قلب کے لیے ایک مرتبہ دہراتا ہوں آپ سے. آپ سارے کے سارے ایک مرتبہ دہرائیں گے. تو پہلے وضو کے فرائض کی بات کرتے ہیں. تو بچوں بتائیے، وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4. نمبر 1، نمبر 2، سارے نہیں بول رہے ہیں، سارے بولیے ایک ساتھ. نمبر 3، نمبر 4، سب بچے نہیں بول رہے ہیں. اور جو نہیں بول رہے ہیں، جب ویڈیو آپ کی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد میں ایک ایک کر کے سنوں گا، یاد رکھیے گا. اس لیے پورے غور کے ساتھ. اسی طرح غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. بات سمجھ میں آ گئی اچھے سے؟ تو چلیے آج ہم پاکی سے آگے نکلتے ہیں. تیمم کے مسائل آپ کو بتائیں گے، پر ابھی نہیں. اس سے پہلے ہم نماز کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو انسان بنائے، جن بنائے، اپنی عبادت کے لیے بنائے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر طریقہ سکھا دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچا دیا ہے. اب ان احکامات کو، ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ نماز ہے. عقائد کے بعد دوسری چیز کیا سیکھنی ہے ہم نے؟ نماز ہے. جب عقائد درست ہوں گے اس کے بعد ہم نماز پر آئیں گے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1، نمبر 2، نماز قائم کرنا. دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا ہے. اب نماز قائم کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے، جو بالغ حضرات ہیں، جو بالغ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ان کے اوپر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. کتنے وقت کی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5. کتنے وقت کی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5. اور یہ جو نمازیں فرض کی ہیں یہ وقت مقررہ کے حساب سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی اور 1 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھی، 1 گھنٹے کے بعد عصر پڑھی، آدھے گھنٹے کے بعد مغرب پڑھی، پھر کیا کیا؟ آرام سے سوئے، رات کو اٹھ کے عشاء پڑھی. ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ترتیب بنائی ہے. یعنی دن اور رات میں صرف اور صرف ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کا ٹائم ٹیبل بھی بتا دیا. بات سمجھے بچہ؟ ساری چیزیں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دی. اب ہم نے سیکھنا ہے. تو ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم پر جو نمازیں فرض ہیں ان کے کچھ نام بھی ہیں، جیسے کہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ترتیب سے آئے گا. فجر کی نماز ہم صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پہلے ہی جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو نماز فجر کا وقت نکل جاتا ہے.
जोहर का हम लगभग 1:30 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं या 1 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। असर की नमाज लगभग 4 बजे के करीब, या जिस तरह से वक्त बदलता रहता है उसी हिसाब से पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज शाम होते ही पढ़ते हैं, और ईशा की नमाज के लिए भी वक्त मुकर्रर है, 7 बजे से स्टार्ट है आजकल। तो इसी तरह आगे नहीं बढ़ता रहता है ये टाइम। तो इस तरह से हम ये 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। बच्चों याद रखिए, इन्हीं नमाजों के सिलसिले में क़यामत के दिन हमें पूछा जाएगा, पर जिनके ऊपर ज्यादा पूछ होगी वो रकात 17 है। कितनी रकात हैं? 17 रकात हमारी नमाजों के अंदर ऐसी हैं जिनके बारे में कल क़यामत के दिन हमें पूछा जाएगा। कल क़यामत के दिन हमें पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सुन्नतों के बारे में ही पूछा जाएगा, जी वाजिबात के बारे में ही पूछा जाएगा, मगर उनमें 17 रकतें ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर फर्ज हैं, ठीक है। अगर वाजिब को मिला लें तो 17 और 3 कितने हो गई? 20 रकात। वाजिब का भी दर्जा वही है जो फर्ज का है, बात समझ रहे हो? तो याद रखिए, यानी 20 रकात ऐसी हैं जिनके बारे में कल क़यामत के दिन हमें पूछा जाएगा। अब वो रकात कौन कौन सी हैं, जरा हम उनके ऊपर नजर दौड़ाते हैं। तो जब हम फजर की नमाज में गौर करते हैं तो पता चलता है 2 रकत नमाज इसमें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पूछा जाएगा। बच्चा इसको पीछे ले जाओ, ले जाओ पीछे इसको, उठाओ इसको, उठाओ इसको आयशा, बच्चा उसको बंद करो। तो जब हम फजर की नमाज में देखते हैं तो 2 रकत नमाज फर्ज, इसके बारे में पूछा जाएगा। जोहर की नमाज में देखते हैं तो 4 रकात नमाज फर्ज, उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। असर की नमाज में देखते हैं तो 4 रकात नमाज फर्ज, कितनी रकातें हो गई? 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, कितनी हो गई? 10 रकातें। हम मगरिब में चले जाते हैं तो 3 रकात उसमें हैं जो फर्ज की हैसियत रखती हैं, तो कितनी हो गई? 13। इसी तरह हम चले जाते हैं ईशा में, तो ईशा में भी 4 रकात नमाज फर्ज हैं और 3 रकात नमाज वितर वाजिब है। 3 रकात नमाज वितर वाजिब है। तो कुल मिला के ये 20 रकात हो गई जिनके बारे में कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, अगर आपने सुन्नत को जानबूझकर छोड़ा है उसके बारे में पूछा जाएगा, उसमें भी आपको जवाब देना होगा। मगर इन रकात में अगर कोई कमी नहीं होगी तो आपकी सुन्नतों को भी पूरा ही तय कर लिया जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी सुन्नतें ये छूट चुकी हैं तो आप किस तरफ चले जाएंगे? जहन्नम की तरफ, ऐसा नहीं, बल्कि आपको राहत मिलेगी कि इन्होंने क्या किया है, फराइज में डंडी नहीं मारी है, बल्कि इन्होंने फर्ज रकातें अच्छे से अदा की हैं। तो ज़हन में रखिए बच्चा, ये जो फर्ज रकातें हैं इनका अदा करना हम सबके लिए जरूरी है, हम सबके लिए करना जरूरी है। पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं फजर की नमाज में 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको 2 ही बताई है ना। आप देखते होंगे कि जोहर की नमाज में कोई 12 रकात पढ़ रहा है, कोई 10 पढ़ रहा है, मैंने आपको कितनी बताई? 4। देखा ना आपने। इसी तरह आप असर की नमाज पढ़ते हैं तो बाज़ हजरात को देखते हो 8 रकात पढ़ रहा है, पर मैंने आपको कितनी बताई? 4। मगरिब में देखेंगे कोई 7 पढ़ रहा है, कोई 5 पढ़ रहा है, मैंने आपको बताई 3। ईशा में देखेंगे कोई 9 पढ़ रहा है, कोई 11 पढ़ रहा है, कोई 15 पढ़ रहा है, कोई 17 पढ़ रहा है, पर मैंने कितनी बताई आपको? 4 और 3 7, यही बताई ना। अब आप सोचेंगे मौलवी साहब गलत तो नहीं बता रहे कहीं? तो मेरे अजीज तलबा देखिए, जो चीजें मैंने आपको बताई है ना उनकी हैसियत फराइज की है। उनकी हैसियत क्या है? फराइज की है। अब इसके अलावा भी कुछ नमाजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। इसके अलावा भी कुछ नमाजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, और उन नमाजों को हम सुन्नत मुअक्कदा कह सकते हैं या सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं या सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। अब सुन्नत मुअक्कदा कौन सी रकात है? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातिर पढ़ी हो, कभी कभी छोड़ दिया हो पर मुतवातिर पढ़ी हो। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो है, ठीक है, कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा तो मुतवातिर हो, उनको भी मुतवातिर पढ़ा हो, मगर अक्सर छोड़ी हो, अक्सर क्या हो? छोड़ी हो, ताकि उम्मत पर बोझ न बन जाए। तो एक सुन्नत मुअक्कदा हो गई
दूसरी क्या हो गई सुन्नत गैर मुअक्कदा। अब जब हम फजर की नमाज देखते हैं 4 रकात तो पता चलता है इसमें 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है जो हम फर्ज नमाज से पहले पढ़ते हैं, फर्ज नमाज से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ते हैं। तो कुल कितनी रकात हो गई? 4। हम जोहर की नमाज में आते हैं तो पहले हम 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, उसके बाद 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं। अगर कोई इतना पढ़ के निकल जाता है तो उसकी नमाज अदा हो गई। अब कोई अगर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है तो हो जाएगी 12 रकात। और हमारे बुजुर्ग हजरात जितने भी गुजरे हैं, ठीक है, उन्होंने हमेशा 12 रकातें पढ़ी हैं ताकि सवाब ज्यादा मिले। वो नफली नमाज है, 2 रकात जो लास्ट में हम पढ़ेंगे, तो नफली नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, ना पढ़ने से गुनाह नहीं है। इसी तरह हम असर की नमाज देखते हैं तो बहुत सारे बुजुर्गों को आप देखेंगे वो 8 रकात पढ़ रहे हैं। फर्ज नमाज पढ़ने से पहले 4 रकात नमाज और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं पर बहुत सारे नहीं पढ़ते। तो इससे पता चला कि जो पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। वो कौन सी हैं? ठीक है, उनको पढ़ने की ज्यादा ताकीद नहीं है। हाँ, अगर कोई पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा और कोई अगर नहीं पढ़ेगा उसको वो गुनाह भी नहीं होगा। इसी तरह मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 3 रकात नमाज क्या पढ़ते हैं? फर्ज पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं। कितनी पढ़ते हैं? 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा। और अगर कोई इतनी पढ़ेगा तो उसकी नमाज